Deceased is Lokesh. Offense period incident took place on 1/11/2024 at 9 o'clock in the night. First of all, we were on 3/11/2024. Gumshodni report was lodged by the eyewitness Rohit, son of Bhavanlal, who happens to be the real brother of the deceased. And in that Gumshodni report, what he has said is कि हम रास्ते में ढाबे पर खाने रुके थे। मेरा एक साथी आनंद सूर्यवंशी गाड़ी के पास रुका था। डेरे में कुछ लोगों से कहा सुनी होगी, जिसके कारण हम सभी गाड़ी के पास आ गए। हम कुछ लोग वाद विवाद करने लगे। हम इधर उधर भाग गए। भागने के कुछ समय बाद लोकेश, मेरे भाई लोकेश डिसीज्ड का मेरे साथी आनंद सूर्यवंशी के पास फोन आया कि मैं निकल गया हूँ, तुम सब भी गाड़ी लेकर निकलो। जिसके बाद हम हमारी गाड़ी लेकर निकले। कुछ देर तक भाई लोकेश को ढूंढा, कोई पता नहीं चला। फिर ये लोग घर निकल गए। Then on 5/11/2024, FIR was lodged by one Somik, who again is an eyewitness and was accompanying the deceased. What he in his FIR has said कि हम रास्ते में 8 बजे ढाबे के वहां खाना खाने रुके थे, तो मैं, उनके साथीगण रोहित का भाई लोकेश, रोहित who lodged the Gumshodni report, did not state a single word in 3/11 Gumshodni report that any assault was made. So what he said is, मेरे साथी गाड़ी के पास रुका, मेरे पर एक सिगरेट मांगी, 10 रुपए की सिगरेट के 15 मांगे, खुले नहीं होने से मैंने बारकोड स्कैन किया। बारकोड पर यश किराना स्टोर के नाम से आ रहा था। फिर दुकान वाले ने बताया कि मेरा नाम यश है। मैंने दुकान वाले का कहा कि 10 रुपए नगद, 25 रुपए फोन पे किया है। मैंने दुकान वाले से बोला कि 10 के सिगरेट 15 में क्यों दे रहे हैं। गाली देने लगे और मैंने कहा, उसने एक अन्य साथी लड़के को आवाज लगाई कि मारो। फिर हम लोग ढाबे पर खाना खाने आ गए। खाना खाने के बाद जैसे निकले तो यश चौहान बुलेट लेकर आया। 2-3 मोटरसाइकिल और आई। एक मत होकर आनंद, रोहित, लोकेश के साथ गुस्से से मारपीट की, जिससे मेरे दोनों हाथ पैर, रोहित, आनंद, अभिषेक को चोट आई। जिसके बाद हम लोग बचते हुए भागे। थोड़े दूर तक जाने के बाद पीछे से एक लड़का यश चौहान अपने साथी के साथ बुलेट पर आया कि यहाँ से भागे नहीं। इसके बाद भागने के कुछ समय बाद मेरे साथी लोकेश का आनंद सूर्यवंशी के पास फोन आया कि मैं तो निकल गया हूँ, तुम भी गाड़ी लेकर निकल जाओ। Then one more interesting fact which I was not able to point it out. Then the dead body was recovered on 6/11/2024 at 5 in the evening from a well. Then again, the RT Marg intimation was launched from a well at village Purwalia, at the agricultural field of one Sarfaraz Khan, which is situated in village Purwalia. Then when the dead body was recovered from a well around 1500 hours, then again the Hathi Marg intimation was lodged. 1500 hours means 3 p.m. Sham ko 5. I'm sorry, 1700 hours. I'm sorry, sir. 1700 hours, that is 5 in the evening. Then after 35 minutes of recovery of the dead body, at 17:35, on 6/11/2024, the Hathi Marg intimation was lodged by Rohit, who is an eyewitness, real brother of the deceased. What he said about the Hathi Marg intimation is very much important. मैं राजीव नगर आगर में रहता हूँ, चाय नाश्ता की दुकान चलाता हूँ। दिनांक 1/11/2024 को मैं, मेरा भाई लोकेश तंबुलिया, अपने दोस्तों के साथ हम पड़वलिया रतलाम आए थे। वहां से रात में करीब 9-10 बजे मेरा भाई लोकेश अचानक कहीं गुम हो गया। काफी तलाश करने के बाद मेरा भाई की गुमने की रिपोर्ट हमने लिखाई और फिर ऐसा हुआ। तो इन दिस रिपोर्ट also it does not speak a single word that there was any assault by any of the accused. And it is from my learned friend was directed to take instructions or designed with regard to the fact that from 1/11 to 6/11, what was the status of the deceased till the day when the dead body was found? Because in the postmortem report,
there is no approximate time when the deceased died as a result of injuries or the other thing. पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट आया कि जो 5 से 7 दिन पहले की जो थी कितना उल्लेखित किया पीएम रिपोर्ट स्पष्ट किया हुआ है, जैसा कि आपने क्या लिखा है पढ़िए। Between death and postmortem examination, probable time about 5 to 7 days prior to postmortem examination. कॉज ऑफ डेथ क्या बता रहे हैं? Body in moderate stage of decomposition shows external evidence of Immersion. immersion along with multiple injuries. पंचनामा में भी जो चोटें थी उनके संबंध में उल्लेख था। लास्ट पंचनामा में भी इन चोटों का उल्लेख है पीएम रिपोर्ट में भी। और जैसा कि अभी इनका कहना है कि जो क्वेरी भी सर इसमें करवाई थी जिसमें पीएम रिपोर्ट में लिखा है एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ इमर्शन के संबंध में। तो क्वेरी रिपोर्ट में लिखा है आफ्टर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड क्वेरी रिपोर्ट बाय यू आई हैव क्लियरली मेंशन्ड इन माय ओपिनियन इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दैट ओनली external evidence of immersion are present over the body, no internal evidence whatsoever is present in internal examination which is even suggestive of death. Internal evidence नहीं पाए इसको जो external चोटें आई उससे देखना। What they have to explain, my lord, is that the date of incident is 1/11. On 3/11, an eyewitness lodges in Gumshudgi report, real brother, does not speak a single word. Regarding the second query, Wait. Let him complete, then you may answer. He did not speak a single word in that Gumshudgi report regarding any sort of assault, though he is an eyewitness to the incident. Then again, on 6/11/2024, when the Dehati Marg was launched, in that also the brother says कि वो कहीं गुम गया है. There is no history or allegation that only one of the accused has assaulted. Son of Bhavaryan, Missing person report. Rohit has lodged missing person report on 3/11 Gumshudgi, as well as Rohit has lodged Dehati Marg intimation on 6/11. Same person. Rohit, son of Bhavaryan, who happens to be real brother. And in the main FIR, when the actual assault was narrated by Soumik, who lodges an FIR on 5/11, he waited till 5/11 for lodging of the FIR. And on 5/11 वो ये कहता है कि रोहित भी साथ में था. Deceased Lokesh had given a call to an Anand Suryavanshi कि मैं तो निकल गया हूँ, आप लोग वहां से निकल जाओ. गुमशुदगी रिपोर्ट के संबंध में जैसा कि ऐसा कोई विवाद का उल्लेख नहीं, गुमशुदगी रिपोर्ट में पढ़ देता हूँ। उसमें स्पष्ट हुआ जो घटना को पूरी बाद में जो देहाती नासी के बाद भी जो करनी आई है, उसको गुमशुदगी रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि ये जो घटना दिनांक बताइए 11/24 को पता मेरा भाई लोकेश मेरे साथियों के साथ शाम करीब 5 बजे सांवलिया जी जाने के लिए घर से निकले थे। हम सभी रास्ते में रात करीब 9 बजे उन्होंने यहाँ बाछड़ा डेरा के यहाँ ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे, जिसके बाद मैं मेरा भाई लोकेश जो डिसीज है तथा मेरे साथी लखन, गोलू, गट्टू, सोमिक, कार्तिक, सौरभ सभी बाछड़ा डेरे में घूमने गए थे तथा हमारा एक साथी आनंद सूर्यवंशी गाड़ी के पास ही रुका था। डेरे में हमारी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिस कारण से हम सभी गाड़ी के पास आ गए थे। कुछ लोग यहाँ वहां आकर विवाद करने लगे थे, जिसके कारण हम सब इधर उधर भाग गए थे। भागने के कुछ समय बाद ही मेरे भाई लोकेश का मेरे साथी आनंद सूर्यवंशी के पास फोन आया कि मैं तो निकल गया हूँ, तुम सब भी गाड़ी लेकर निकलो। जिसके बाद हम गाड़ी लेकर वहां से निकल आए थे। इसमें स्पष्ट हुआ है और यही प्रकरण की संपूर्ण स्टोरी है कि विवाद होना और उसके बाद जो लास्ट सीन के संबंध में भी आया है, डेड बॉडी रिकवर होना, लास्ट सीन के संबंध में उन 3 ढाबे वालों के भी कथन लिए गए। उन्होंने भी लास्ट सीन में ये घटना होना और ये मृतक है इसको आखिरी बार इन आरोपियों के साथ देखा जाना और जो अन्य साक्षीगण उन्होंने भी ये लास्ट सीन के संबंध में बताया। और बाद में जो शिनाख्ती कराई गई इस अन्य आरोपी की, एक आरोपी को नहीं पहचाना, बाकी जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसको पहचाना है। किसने पहचाना? Soumik is the Soumik, the person who has lost the FIR. He is identified. The only question is with regard to the explanation from 1/11 till 5/11 they kept quiet.
The eyewitness does not speak a single word कि assault हुआ था. And third person होता तो he might not be interested, but real brother was accompanying the deceased till 6:11. In that he says कि वो तो कहीं घूम गया. पर 61 के कथनों में सभी ने स्पष्ट किया 5/11 जो गुमशुदगी उसमें भी स्पष्ट हुआ कि वाद विवाद होना, ये जो फरियादी पक्ष है, फरियादी पक्ष के अलावा जो आई विटनेस, उन जो स्वतंत्र साक्षी और ढाबे वाले, उनके कथनों में भी स्थलों भागते हुए 2 से 3 जगह, इसलिए तीनों जगह ढाबे वालों के कथन लिए और उसमें भी इस आरोप प्रेजेंट नकली के नोट इनके नाम आए, जो लास्ट होना भी बताते हैं और घटना कार्य करना बताते हैं। जो घटना होता है 1 तारीख की रात्रि की है और ये जो बाद में गुमशुदगी में भी देरी का कारण बता है, उसके संबंध हो सकता है कि 1 तारीख की घटना है, रात्रि की घटना है, अगले दिन 2 तारीख रही और 2 तारीख को भी ये सांवरिया सेठ, मतलब जो निकले थे सांवरिया सेठ के लिए, सांवरिया सेठ के अलावा ये जो घटना स्थल है वाछड़ा डेरा, तो वहां हो सकता है उस कारण से उस दिन सेमडे घबराहट के कारण इन्होंने गुमशुदगी दर्ज ना कराई, तो 1 आध दिन पूरा बाद में डेटबाजी रिकवर होना, गुमशुदगी के बाद इन्वेस्टिगेशन में इस आरोप को सभी टावर लोकेशन जो के संबंध में निकाली गई है, As far as I recollect, the tower location of the accused has not been obtained. Whether it was the same tower location as of the deceased. मैंने डिसीज की क्या आई है? नहीं, वो जो घटना स्थल बताया परवलिया, जो टावर लोकेशन नहीं लास्ट टावर लोकेशन से परवलिया गांव, यानी वो वहीं मिल गया इनसे। But there is no explanation regarding from first till third. He died on the same day. As far as the homicide death is concerned, we are not. He died of the injuries, not by As far as there were 18 injuries on his body, so we are not challenging that it's not an homicidal death. We are not saying that he died because of drowning. But what we are saying is that 1 तारीख को इंसिडेंट हो गया रात को 9 बजे, सगा भाई वहां पे प्रेजेंट है, 3 दिन बाद गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाता है, उसमें कहीं नहीं कहता है कि मेरे भाई को पीटा, उसके बाद भी 6/11 को डेड बॉडी मिलने के बाद कहीं नहीं कहता है कि मेरे भाई, that is only Marg intimation. ultimately he is the person who gave the first information. Gumshudgi report would be the first information received by the police officer regarding some unnatural happening with the accused, with the deceased. तो उसमें कहीं नहीं कहता है 5 तारीख को पहली बार सौमिक came into existence, जो थर्ड पर्सन है उससे रिलेटेड नहीं है, वो कहता है कि मेरे भाई, and in fact the deceased gave a phone call कि मैं तो वहां से निकल गया हूँ, निकल गया, फिर उसके बाद फिर उसके हाथ का कोई एविडेंस नहीं पर्सन। सर ऐसा एविडेंस होना चाहिए था चार्जशीट में कि कुछ लोगों के कि they were on a motorcycle and they were searching for some of the witnesses or the deceased, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है। So what is the link evidence in between? और सगा भाई अगर तो कम से कम रिपोर्ट लिखाता है कि मेरे भाई को पीटा है, उसके बाद से मिसिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी ही सेज कि वो तो घूम गया। It does not speak a single word regarding the assault. Not the accused persons going after the deceased. no counsel not inclined. When need reasons, I'll write in order. No, I don't want the reasons in writing, my lord. Withdraw. Next. The plan was wrong then.